No means no. Does it ring any bell? What is sexual harassment? What are the types of sexual harassment? In short, anything that is unwanted is harassment. कई बार ऐसा होता है कि किसी के बिहेवियर से हमें कोई तो चीज बहुत ही अनईजी, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगती है. इन केस ऑफ एनी डाउट हमेशा कंसल्ट कीजिए किसी एक्सपर्ट से जो आपको सही से बता सकता है whether it is a sexual harassment act or not. And this is what we are going to speak in the podcast today. I have with me Ashima Sharma, who is a POSH enabler. POSH is short form of Prevention of Sexual Harassment Act India. It can be at workplace या तो कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो कि वर्कप्लेस के बाहर भी होते हैं. चलिए बात करते हैं आशिमा से और जानते हैं what are the types of sexual harassment, what are the solutions for it. Hey angels, welcome to my channel and to my podcast today. आशिमा शर्मा की सारी लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं. Feel free to go ahead and check it out. In case if you guys are new out over here and if you resonate with my high value adding channel and want to see interesting people, interesting message every week, do not hesitate to subscribe to my channel and hit the all notification button. I have shared some more interesting links along with the details in this video description is there. Feel free to go ahead and check it out. So now let's go ahead. Let us talk with Ashima and see what are the types of sexual harassment, what are the required steps to be conducted. हाय आशिमा, कैसे हैं आप? हाय नमिता, बिल्कुल ठीक. आप सुनाइए. हाँ How जी, are you? बढ़िया बढ़िया. How is everyone at your home? बिल्कुल ठीक. All is well. Everybody's fine. So my just daughter wanted to come and see what is happening. That's nice. So आशिमा, आपकी पुणे आप ट्रिप कैसी बताइए. थी? पुणे ट्रिप बहुत अच्छी थी. बहुत मजा आया. तो काफी लंबे समय के बाद ब्रेक मिला, तो अच्छा था. तो पुणे में आप आप you based कहाँ पर कौन सी प्लेसेस आपने विजिट की पुणे में? पुणे मैं एक्चुअली हिंजीबड़ी की साइड पर थी, तो थोड़ा हाँ. सिटी से दूर हो जाता है, तो नियर बाय टाउनशिप्स. बट ये मेरा पहला विजिट नहीं था, सो आई हैव बीन टू सर्टेन अदर प्लेसेस आल्सो इन पुणे, लाइक जर्मन बेकरी एंड दैट साइड ऑफ द टाउन आल्सो. So I've seen couple of places. अच्छा था, but otherwise good fun. मजा आया. तो वही टाउनशिप के आसपास एक दिन I took my daughter to listen to live music. वहाँ पे थोड़ा वॉक करना. फिर there was this एक आइसक्रीम वाला था, तो वहाँ पे वो जो चॉप करके वो आइसक्रीम वाला वो दिखाया. तो different thing. Local cuisine try किया. That's interesting. मिसल पाव, दाबेली. Got some namkeen वहाँ से वापस. So then we went to Lonavala. फिर एक one night Mumbai and then I got back. Super. So आशिमा, आपके बारे में हाँ मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी शूट कर दिया है. मैं चाहती हूँ कि आप भी Okay. आपके बारे में कुछ बताएं. Okay. So मेरे बारे में so I am, first of all, I will start off with that I am a mother, I am a daughter, I people find me that I'm a good friend, approachable person, and I am a trainer and a facilitator as well. So I do sessions for various corporates, schools, colleges, different subjects, की corporate skills, specifically the young generation hai, when they come out of college or out of 12th, what should they do? So helping them understand that उनको क्या-क्या चीजें या क्या-क्या skills पे काम करना चाहिए कि corporate पे entry उनके लिए थोड़ी आसान हो. Because अभी भी हमारी country में जो हम theory पढ़ते हैं वो applicable नहीं होती to a larger extent जब हम बात करते हैं professional setup में जाने की. तो बेसिक थिंग्स लाइक क्योंकि हमारा जो कंट्री है ना मल्टीलिंगुअल है, तो एंड सबका वो इतना वो एंड इंग्लिश अभी भी पीपल थे कि कॉर्पोरेट में इंग्लिश होनी चाहिए. सो अदर लैंग्वेजेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो इंग्लिश में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, आपको बात कैसे करना चाहिए, आपको ईमेल्स कैसे लिखना चाहिए. तो आई डू सेशंस ऑन दैट. बेसिक प्रोफेशनल ग्रूमिंग, अलग अलग एस्पेक्ट्स, टीम मैनेजमेंट. अभी 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था, तो वर्चुअली कैसे मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, those aspects. Apart from that, change management, stress management, time management, these are the other topics I cover. Assertive communication, and then I do sessions, something which is very close to me, POSH trainings and POXO awareness also for parents. So that is what I've been doing.
पिछले 5 साल से मैं वर्क एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट. उससे पहले मैं आई हैव बीन वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्रिटिश एयरवेज एंड थॉमस कुक. तो 5 साल से अब मैं अलग अलग कंपनीज के साथ काम करती हूँ, डिपेंडिंग उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस द काइंड ऑफ देयर ट्रेनीज एंड employees usually. This is really superb, Ashima. So Ashima, on that note, I would like to welcome you to our podcast, to my channel, and to our world of audience. Thank you for accepting my invite and coming over here. Thank you so much. I would definitely like to add, it's a very nice initiative. जो मैंने आपका पॉडकास्ट, आपका पेज भी देखा नमिता, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू आर पिकिंग. इट इज वंडरफुल टू सी दैट, बिकॉज जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये नहीं that you're sticking to one sort of thing only. So all these topics are very important for today's generation to be aware of. And best part, you cover all the age groups. It's not that one specific age group. So that's wonderful. You know, you're doing really wonderful work. बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप when it comes to awareness. Thank you so much, Ashima. मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग चीज है. And you know, I can definitely see that you're so passionate and passion driven ना, कि अपने busy schedule से time निकाल के इस चीज को करना, तो वो show करता है कि कितनी शिद्दत से आप अपने काम में फोकस करते हो. How sweet of you, Ashima. Thank you once again. So Ashima, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. अब आपने जैसे कि ऑलरेडी एक ब्रीफ दिया है about POSH. Then what is actually POSH Act? Okay, so POSH Act का full form है, Prevention of Women at Workplace Act. Basically, it's like sexual harassment, protection of women from sexual harassment cases at workplace. So ये act actually बना है for females who are working. 2013 में एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था कि for females who are working at specific workplace, it should be a safe environment for them basically. So बहुत सारे लोगों को लगता है कि this has come in, the act was implemented after Nirbhaya case. No, it's not the right this thing. It actually came into existence after the country saw Bhavri Devi gang rape case. So Bhavri Devi was a grassroots worker. वो 1992 में रादर ये हुआ था उनके साथ कि तो वो एक छोटे से विलेज में काम करती थी. शी वाज अ लोअर कास्ट वुमेन. तो वो अवेयरनेस क्रिएट करती थी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए. तो वो एक साल के बच्चे की शादी रुकवाने गई थी जब उनका 5 लोगों ने रेप किया. शी वाज एक्चुअली डूइंग अ वर्क. So there is a movie called Bhavandar, नंदिता दास की मूवी है, वो इसी उसके ऊपर बनी है. तो it actually talks about that. तो उसके बाद जब उनका 1997 में इस चीज पे काम होना शुरू हुआ कि ऐसा एक एक्ट होना चाहिए दैट कि जो प्रोटेक्ट करता है वुमेन को हमारी कंट्री में एट देयर वर्क प्लेस. और ये उसके बाद ये 2013 में फाइनली जाके इम्प्लीमेंट. अभी भी इट इज अ मैंडेटरी एक्ट, कंपल्सरी इसकी ट्रेनिंग भी कंपल्सरी है फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री. एवरी person who is an employee should go through and they should be aware of the law. However, still there are many companies which are still not following it. Oh, okay. Situation मैंने आपको बताई, sorry to cut you in. As a woman, you know, आप हो, मैं हूँ, या हमारी कंट्री में इतने women हैं. Most of us, at least I will say 90% of us have faced some or the other sort of sexual harassment throughout our life. True. कोई छोटे फॉर्मेट में, कोई बड़े फॉर्मेट में. So it's very important that this now we should work towards that to stop it, and even before कि उसकी अगर कुछ होता है तो कैसे उसको हैंडल करना है, हमें इसको रोकना है. And we have to start it right from the families, our own families. We have to change the thought process in our society. Acceptable. So आशिमा, आप जैसे कि आपने कहा कि लाइक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक्चुअली चीज होनी चाहिए. क्या सारे ऑर्गेनाइजेशंस में फिलहाल ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, इज इट एप्लीकेबल, इज इट मैंडेटरी, या वो किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के रेटिंग्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है? रेटिंग्स को इम्पैक्ट कर सकता है कि नहीं, I cannot comment on that, but it is mandatory for every organization in the country, whether schools, colleges, companies, factories, small organizations, even proprietorship companies, छोटी companies, बड़ी companies, सब के पास एक कमेटी होनी चाहिए टू हैंडल अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट केस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आता है. और एवरी एम्प्लॉय शुड गो थ्रू अ POSH ट्रेनिंग. ट्रू. ये हर कंपनी को अप्लाई करता है, चाहे उसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो या कम एम्प्लॉइज हो. मेक सेंस. It even applies to जो मेरे घर में अगर कोई काम करने आता है, if I have a house help, ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है. Oh, okay. It's not even organization because my house is her workplace. Correct. So she's also covered under this act. So आशिमा, अगर कोई एस्पायर करता है
कि लाइक पॉश में अगर उन्हें काम करना है तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? यू शुड हैव दैट, उनके लिए क्राइटेरिया कि आपको पॉश एक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको पॉश एक्ट मतलब ऐसे इश्यूज पे काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि दीज आर इश्यूज जो बहुत ज्यादा, it's not just these are serious matters. It's not just like कि आपको एक स्टार ऐड करना है अपनी प्रोफाइल में तो आप ये करें, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, इट शुड बी लाइक कि ना यू शुड, इट इज समथिंग वेरी क्लोज टू मी, लाइक मैंने जैसे आपको बोला कि बीइंग अ वुमन हम सब ने वो चीजें फेस की हुई हैं, तो डेफिनेटली वी डू नॉट वांट कि हमारे आने वाली जनरेशंस को भी वो चीजें फेस करनी पड़े। अग्रीड, राइट। और आज की सिचुएशन तो ऐसी है, क्योंकि मैं पॉक्सो भी वो करती हूँ, आज के डेट में जो डेटा कहता है कि इट्स नॉट जस्ट अ गर्ल चाइल्ड हु इज बीन exploited, or it's not just a women who's been exploited. Males are also getting sexually harassed. Boys of younger kids, अगर मैं देखूं girls and boys के डेटा ज्यादा है जो harass होते हैं sexually rather than girls. Oh, that's an alarming fact in our country. Exactly. I mean, Ashima, I really must say कि जो आप काम कर रहे हैं, you are really inspiring, Ashima. Thank you. So there are not just me, but there are a lot of people in the country who are working towards it to create awareness. So I'm just one of them. That is why this is very close to me. And anybody who जिनको interest हो topic में, information is available everywhere. हाँ, अगर आप कोई specific training लेते हैं तो थोड़ा knowledge streamline हो जाती है, आपको समझ में आता है कैसे उस issue को address करना है, कैसे लोगों को समझाना है in easy और simple manner, क्योंकि law हमारी कंट्री में डेफिनेटली काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में यूज होता है। तो जहां से मैंने सीखा, जैसे मैं लोगों को आगे अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि कैसे एक सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों को हम ये एस्पेक्ट समझा सके, क्योंकि यही बेसिक चीज है। अगर मुझे समझ ही नहीं आएगा मेरा लॉ क्या है, तो मैं आगे कैसे अपने समझूंगी कि मेरे राइट्स क्या है, या मैं किसी और को कैसे अवेयर करा सकती हूँ। बिकॉज इसके दो एस्पेक्ट्स है, एक मेरी अपनी सिक्योरिटी, और दूसरा इफ आई एम इन सेफ एनवायरनमेंट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, बाय गॉड्स ग्रेस मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन अगर मुझे अवेयरनेस है, मैं और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स, कलीग्स या जिन लोगों को मैं जानती हूँ जिनको उस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, मैं उनको डेफिनेटली हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी है। बिल्कुल। सो आशिमा, अभी आपने जैसे कुछ बातें बताई, इससे मुझे दो सवाल आ रहे, सो यू नो प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू। प्लीज। तो एक जैसे कि एक सवाल है कि आपने बात की अबाउट डेटा, ओके। अब कई बार हम जब न्यूज में पढ़ते हैं तो ये भी हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो अनरिपोर्टेड होते हैं। अब आपने जैसे डेटा में कहा कि लाइक बहुत सारे मेल्स भी है जो कि इम्पैक्टेड है, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे मेल्स शायद खुलकर सामने आए हो इसलिए शायद केस रिपोर्ट हुआ हो, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हो जो खुल के सामने आई भी ना हो? और दूसरी चीज ऑन दैट सिमिलर लाइंस, अभी आपने बताया कि लाइक बहुत सारे लोगों को अवेयर नहीं है, बहुत सारे लोग लाइक इन रिमोट लोकेशंस का हो ऐसे, तो अगर उन तक अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, जानकारी पहुंचानी है, तो ऐसे कोई इनिशिएटिव्स होते हैं जो मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज ऐसे कुछ लेते हैं? एनीथिंग यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट? डेफिनेटली। एक चीज ये आई वुड लाइक टू से कि यू नो इट्स एक्चुअली उल्टा, नमिता, व्हाट आई फील, फीमेल्स आर स्टिल एबल टू come out more. हमारी सोसाइटी में मेल्स डेफिनेटली विल नॉट कम आउट एंड टॉक अबाउट that I am being sexually harassed. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, क्योंकि हाँ, मैं आपको बताती हूँ उसका रीजन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसके बाद मैं आपको एनजीओ के बारे में भी बताती हूँ जहाँ काम चल रहा है इन रूरल एरियाज ऑल्सो। कि हमारी कंट्री में क्या है, जो इवन व्हेन आई डू अ सेशन, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर। ये बहुत जरूरी है समझना और सबका जेंडर सेंसिटिव होना, ये फर्स्ट लेवल है जो हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है या हम अपनी सोसाइटी में जो चलता आ रहा है कि लड़कियों के लिए पिंक कलर बना है, लड़कों के लिए ब्लू कलर बना है? अग्रीड, राइट। बहुत हमारी कंट्री के बहुत सारे टॉप मोस्ट शेफ्स आर मेल्स। ट्रू। इट्स नॉट दैट कि लड़कियों को किचन सेट गिफ्ट करना चाहिए या लड़कों को टूल्स गिफ्ट करने चाहिए। बिल्कुल। इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। जरूरी नहीं है मेरी बेटी को किचन सेट पसंद हो, उसको दूसरी चीजें, बॉयज वाली चीजें भी पसंद आ सकती है, गन्स भी पसंद आ सकती है। इट्स हर चॉइस। इसका मतलब ये नहीं है, मैं डेफिनेटली नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों को किचन टॉयज नहीं देने चाहिए, लड़कियों को किचन में काम नहीं करना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स माय चॉइस, इट्स व्हाट आई, जो मुझे पसंद है, जो मैं करना चाहूंगी। मुझे ब्लू पसंद है, मैं ब्लू पहनूं, मुझे पिंक पसंद है, मैं पिंक पहनूं। तो मैं आज एक सेशन कर रही थी, तो अभी वो सर्दियों के कपड़े रैप हो रहे हैं ना, तो मैं सेशन में भी बता रही थी आज ही सुबह कि ये दिस इज अ पिंक स्वेटर, ये मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का है, ही लाइक्स टू वेयर पिंक।
and I can wear blue also. It's absolutely fine. So let's not bifurcate things between pink and blue. कि लड़की है तो उसको यही गिफ्ट देना है या लड़का है तो उसको यही लेके देना है. Let the child decide. That is the first and foremost step. जहाँ हमें अपने घर में शुरुआत करनी चाहिए. जो rules and guidelines अगर मेरी बेटी के लिए मेरे बेटे के लिए भी वही होने चाहिए. Like I have grown up in a household कि अगर मेरे लिए, क्योंकि I live in the rape capital of the country, if I have to say Delhi NCR. So अगर मेरे लिए रूल्स थे कि भैया 10 बजे तक घर आना है, तो मेरे भाई के लिए भी वही रूल्स थे. It's not like वो if he wants to go out, I am comfortable. I said तू जाना, तू enjoy कर, that's a separate thing. But मेरे पेरेंट्स ने रूल्स हमारे लिए सेम रखे हुए थे. ऐसा नहीं है कि लड़के के लिए अलग है, लड़का रात को 2 बजे तक बाहर घूमता रहे और लड़की 9 बजे घर आ जाए, ऐसा नहीं था. So एक तो वो चीज है कि वी शुड हैव द सिमिलर काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स. दूसरी चीज ये है उनको ये बताना रिस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल. तीसरा, नाउ आफ्टर द सेक्शन acceptance of the third gender also in the country, that a female can like a female and a male can like, सबसे decriminalization हुई है. So things are getting better, still will take a longer time. It's very easy. हम में से बहुत सारे progressive parents हो सकते हैं, हम कहते हैं हाँ हो सकता है एक लड़का एक लड़के को like करे. It is fine. It will be fine if the situation is in your house. How are you going to take it then? ये अभी भी बहुत आसान है कहना. किसी और के घर में अगर किसी और का बच्चा लड़का होकर एक लड़के को लाइक करे, एक लड़की होकर लड़के को लाइक करे, क्या आप रेडी है? अगर आपका बच्चा, आपका बेटा एक बच्चे को लड़के को लाइक करे और एक लड़की को लाइक करे, you have to ask that. Then you become a progressive parent. तब आपकी सोच खुलती है. दूसरों के लिए बोलना भी आसान है, आपके अपने घर में आप वो चीज हैंडल कर पाएंगे. दैट इज इट. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर जेंडर सेंसिटिव. तो एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था जब वो चंद्रयान 2 का जो था वो लैंडर का विक्रम का फेलियर हुआ था. दैट जो इसरो चीफ मिस्टर के सिवन, he was literally in tears in front of our prime minister. तो लोगों ने बोला, is it okay for men to cry? There was a headline in one of the specific dailies. Why can't men cry? क्यों नहीं आदमी रो सकता? वो भी तो हार्ड मास का बना हुआ, मतलब बॉयज आर नॉट मशीन्स. जो हम बचपन से सिखाते रहे, ओ तुम लड़के हो, तुम कैसे रो सकते हो? क्यों भाई, बॉयज के भी इमोशंस है. मदर फादर दोनों के बच्चे को लेके सेम इमोशंस हो सकते हैं ना. तो अगर एक लेडी को आप अलाउ करते हो कि वो क्राई करे, एक आदमी को क्यों नहीं अलाउ करते? वो भी तो अपने बच्चे के इमोशंस दिखाए ना. बच्चों का अटैचमेंट भी तो फादर से तभी होगी ना. इट्स लाइक जब मेरी शादी हुई अगर, तो ये सब ये कहते हैं वो लड़की घर छोड़ के आ रही है, लड़की ने सैक्रिफाइस किया, लड़की ने अपनी छोड़ के आई. अरे तो हस्बैंड ने भी तो एडजस्टमेंट की ना, अपनी फेवरेट बेड साइड भी तो मुझे दी ना. मैंने डिसाइड किया ना कबर्ड का कितना बड़ा साइज मैं लूंगी. सो इट इज अ बोथ वे थिंग. इट्स नॉट दैट इट्स अ सैक्रिफाइस. It is not. It is a commitment which has to work both ways. So in our country, we have to work it both ways. It's not a feminist topic. Gender biases working towards both the genders. दोनों genders के लिए हमें काम करना है इकट्ठे. तभी हम अपने लॉज को भी पॉजिटिव बना पाएंगे, क्योंकि वो सेम लेवल पे आना चाहिए. किसी की भी एक की साइड लेंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस दूसरी साइड से बिगड़ जाएगा. सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जो हमें अपने घर से काम करना है, जेंडर सेंसिटिविटी. दूसरा, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि एनजीओ, हम सिटी की बात कर रहे हैं, अर्बन की, विलेज लेवल पे क्या हो रहा है. बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं. देयर इज अभी डेक्कन हेरल्ड का एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया था, वो मैं ऑफलाइन आपसे शेयर भी करूंगी इफ यू वांट टू यूटिलाइज इट समवेयर. तो देयर इज एन इनिशिएटिव कॉल्ड मित्रा. उसमें there are male volunteers who are going to grassroots villages of West Bengal and nearby states in Jharkhand and other places, Chhattisgarh. वो grassroots level पे जाके वहाँ मेल्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज के साथ 6-6 महीने साल के इंटरवेंशंस करते हैं, उनको समझाते हैं अबाउट दिस. तो उसका 6 महीने साल उनके साथ काम करने का रिजल्ट क्या आया है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स में. दीज मेन आर एक्चुअली हेल्पिंग विमेन. जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बच्चों का काम भी ये पति कर रहे हैं. फीमेल्स इन रूरल विलेजेस आर गेटिंग द ऑप्शन टू हैव देयर ओन बैंक अकाउंट. उनको जो घर से उनका स्त्री धन मिला है उसके ऊपर जो मिला है अमाउंट, उस पे उनका हक है. उनको अपने पेरेंट्स को मिलने जाने के लिए अपनी फैमिली से पूछने की जरूरत नहीं है, जैसा शहरों में होता है टू अ लार्जर एक्सटेंट. आई विल नॉट से इन द एवरी हाउस होल्ड, बट जो सिटी लेवल पे काम हो रहा है वो रूरल एरियाज में भी उस पे काम किया जा रहा है. So it's men are also working towards to help their अपनी wives को भी help कर रहे हैं बच्चों को बड़ा करने में. So it is happening. बहुत अच्छा आर्टिकल है, so I will share with you that. Wonderfully said, आशिमा. काफी अच्छा लगा ये बात सुनकर कि बहुत सारी एनजीओज या बहुत सारी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं एंड स्पेशली मेल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. सो आशिमा, अब बात करते हैं कुछ सिचुएशंस के ऊपर, जैसे कि अभी पॉश है. अब पॉश इज अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. तो आप कुछ सिचुएशन बता सकती है जो कि एप्लीकेबल होती है इस एक्ट के अंदर आने के लिए? श्योर.
तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस एक्ट के अंदर आने के लिए 4 चीजें हैं, 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि कंप्लेनेंट फिलहाल एक वुमेन ही हो सकता अंडर द लॉ एज पर द एक्ट करंटली, बट ऑब्वियसली पीपल आर बीन टॉकिंग अबाउट इट्स बीन सेंडिंग अक्रॉस कि अब हमें हर जेंडर को इंक्लूड करना चाहिए इसमें, खाली वुमेन को नहीं। हाँ, जब शुरुआत हुई थी, क्योंकि हमारी कंट्री में वुमेन का वर्क एरिया में थोड़ा ज्यादा हालत खराब थी, इसलिए इस एक्ट को लाया गया, बट अभी सबको कवर करना चाहिए। तो जब हम सेशंस भी करते हैं तो हम कहते हैं कि कंपनी लेवल पे आप जरूर एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी जो बनाओ, उसमें सारे जेंडर्स को कवर करो। पॉश करंटली वुमेन कंप्लेनेंट ही लेता है, कंप्लेनेंट हैज टू बी वुमेन। वर्क प्लेस होना चाहिए इन्वॉल्व बीच में, क्योंकि जो भी हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है वो वर्क प्लेस से हुई है। वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट के बीच, कि जिसने कंप्लेन करी है और जिसके अगेंस्ट कंप्लेन करी है, दोनों के बीच में एक वर्किंग रिलेशन होना चाहिए। और जो हैरेसमेंट हुई है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होनी चाहिए, नॉट एनी अदर फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट, ओनली सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये 4 चीजें हैं। तो अब सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में काफी चीजें आती हैं इस गैमेट में। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट कैन बी एनीथिंग, किसी को किसी गलत तरीके से देखना, बॉडी को ऐसे करके स्कैन करना, कैसे शब्द यूज करना उनको संबोधन करने के लिए, कैसे शब्द यूज करना उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और इवन रिटन मैसेजेस, व्हाट्सएप, ईमेल्स, अगर उसमें कुछ ऐसा वर्ड है जो डबल मीनिंग वर्ड्स हैं, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स जिसके से बात की गई है, हाउ इज दैट पर्सन टेकिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने कुछ बोला है, मुझे कैसा फील हुआ, इंटेंशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। जिसने बोला कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था कहना, मुझे कैसा फील हुआ वो इम्पोर्टेंट। एक्ट वो देखता है कि मुझे वो ठीक नहीं लगा। एट द सेम टाइम आई ऑलवेज से कि अगर इट्स अ फर्स्ट टाइम केस, फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने मुझे बोला, कई ऑफिसेस होते हैं, जैसे कि आई कम फ्रॉम एन इंडस्ट्री वेयर इज वेरी ओपन इंडस्ट्री। तो कई इंडस्ट्रीज होती है जिसमें आप किसी को सरनेम्स या प्रीफिक्सेस से ऐसे बुलाते हो, एडजेक्टिव्स, स्वीटी कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, हनी ये मेरा काम कर दे प्लीज, ऐसे भी बोलते हैं, स्वीट हार्ट ऐसे करते हैं। वो पर्सन का जेंडर लिंगो है, वो सबसे ऐसे बात करते हैं। उनका इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करने का या आपको हैरेस करने का, सेक्सुअल हैरेस करने का, बट वो बात करने का तरीका यही है। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे उनको बोलना भी चाहिए ये बात। तो मैं आई टेल ऑल द फीमेल्स आल्सो कि आप प्लीज बोलिए, आप कहिए उनको कि आई हैव अ वेरी नाइस नेम, मुझे अपना नाम बहुत पसंद है, आप प्लीज मुझे आशिमा करके बुलाइए, आप प्लीज मुझे स्वीटी वगैरह मत बुलाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप भी उसको पानी सर के ऊपर से जाने से पहले वही रोक दे, एटलीस्ट अपनी तरफ से, क्योंकि हो सकता है वो जाने उनको पता ना हो, सबसे ऐसे बात करते हो, इससे आप से भी करते हो। लेकिन अगर आपके कहने के बावजूद इंसान नहीं रुकता है, तो डेफिनेटली आपको आगे जाके कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए अपनी कमेटी के लिए। तो पॉश में क्या होता है, पॉश एक्ट के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटरनल कमेटी फॉर्म करनी होती है, जिसमें सेट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो ये कंप्लेंट उस कमेटी के पास जाएगी। ओके, इट इज कॉल्ड एन इंटरनल कमेटी। इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगी या जो हेड करेंगी, वो कंपनी की कोई भी सीनियर पर्सन हो सकती है, जो लेडी होना कंपल्सरी है, फीमेल। उसके अलावा कुछ और मेंबर्स कंपनी के एम्प्लॉइज हो सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है इस टॉपिक के बारे में, थोड़ी जानकारी है या वो जानकारी लेना चाहते हैं। और एक एक्सटर्नल मेंबर होगा। एक्सटर्नल मेंबर किसी एनजीओ से हो सकता है, एक्सटर्नल मेंबर मेरे जैसा कोई हो सकता है जिसको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है या वो उनकी हेल्प कर सकता है। एक्सटर्नल मेंबर कैन बी अ मेल और अ फीमेल, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, बट प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक का फीमेल होना जरूरी है। एब्सोल्युटली आशिमा। सो आशिमा, आप जैसे कि आपने इंटरनल कमेटी के बारे में बताया, तो जब एक कंप्लेंट रिसीव होती है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट द इंटरनल कमेटी टेक्स? ओके, सो जिस दिन फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ या कंप्लेंट आई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे पास 3 महीने हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए। 90 डेज के अंदर मुझे कंप्लेंट फाइल करनी जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंप्लेनेंट। अगर 90 डेज से ऊपर की बात है तो आइडियली पॉश कमिटीज को कहती है कि आप अभी तक क्यों नहीं आए थे, व्हाट देयर हैज टू बी अ वैलिड रीजन, अदरवाइज इट हैज टू बी 90 डेज। 90 डेज के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, दैट इज द फर्स्ट टाइमलाइन ऑफ स्टेप। जब आईसी कमेटी के पास कंप्लेंट पहुंचेगी, आईसी कमेटी के पास 7 दिन होंगे उसका नोटिस बनाकर रिस्पोंडेंट को भेजना कि आपके खिलाफ हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, ये कंप्लेंट आई है। जब वो कंप्लेंट रिस्पोंडेंट के पास पहुंचेगी, रिस्पोंडेंट के पास 10 दिन है उसका रिप्लाई करने में, या जो वो अपने उस सिचुएशन के बारे में बोलना चाहेंगे, वो अग्री करे कि हाँ ऐसी सिचुएशन हुई थी, मेरा इंटेंशन था नहीं था, वो डिसएग्री करे, वो भी उनका ऑप्शन है। व्हाटएवर इज दिस पर्सन्स रिस्पॉन्स, उनके पास 10 दिन है वो अपना रिस्पॉन्स आईसी को वापस भेजने के लिए। वंस द रिस्पॉन्स कम, फिर आईसी का काम है
दोनों पार्टीज को इकट्ठे बिठाएं और उनसे डिस्कस करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग, आमने सामने बिठा के पूछे, दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्वेश्चन पूछेंगी, कमिटी मेंबर्स उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर वो पूछेंगे उनसे वो जो कंप्लेनेंट है उनको राइट्स बताएंगे उसके कि कंप्लेनेंट चाहता है कि सेटलमेंट हो जाए तो वो ऑप्शन रिस्पोंडेंट को सेटलमेंट का देंगे। अगर कंप्लेनेंट कहता है मुझे सेटलमेंट नहीं करना, इंक्वायरी करनी है, फिर तो सीधे ही इंक्वायरी होगी, दैट इज वन ऑप्शन। फिर अगर जो कंप्लेनेंट है उसको लगता है कि वो सेफ नहीं है तो उसको कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि उनकी ट्रांसफर की जा सकती है, रिस्पोंडेंट की ट्रांसफर की जा सकती है, उनको लीव पे भेजा जा सकता है अगर उनको सेफ गार्ड करने के लिए। और अगर वो एफआईआर भी फाइल करना चाहे तो कमिटी शुड असिस्ट देम इन फाइलिंग एफआईआर एज वेल। इस बिकॉज पॉश में क्या है कि आप पॉश में भी कंप्लेंट, आप कमिटी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं और साथ के साथ आप एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं। आईपीसी एंड पॉश कैन गो टुगेदर आल्सो, और आप ना चाहें तो खाली कमिटी को भी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज रिमार्केबल आशिमा। तो आशिमा, आप कुछ बता सकते हैं कि जनरली टाइम कितना लगता है ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए? क्या ऐसा कोई एक अग्रीड या एक सेट टाइम है कि इस टाइम के अंदर कंप्लेंट रिसीव होने से लेकर उसके रेजोल्यूशन तक ये काम हो जाना चाहिए, करके ऐसे कुछ सेट टाइमलाइन होता है? एग्जैक्टली, कमेटी के पास 90 डेज है ये पूरा प्रोसेस करने के लिए। जिस दिन से कंप्लेंट मिलती है उससे नोटिस भेजने में, उसका रिस्पोंडेंट का रिप्लाई आने में और पूरी इंक्वायरी करने में 90 डेज के अंदर कमेटी को ये पूरा काम खत्म करना होता है। और उसके बाद अपनी 90 डेज में खत्म, पूरी इंक्वायरी खत्म करने के बाद उनके पास 10 दिन होते हैं अपनी रिकमेंडेशंस मैनेजमेंट को या एम्प्लॉयर को भेजने के लिए। ओके, तो वो मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर को भेजते हैं। फिर मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर के पास 60 डेज होते हैं कि वो फाइनल क्या करते हैं। मैनेजमेंट चाहे तो आईसी के रिकमेंडेशंस पे काम कर सकती है या अपना कोई और फाइनल रिकमेंडेशन, अपना कोई और वो भी कर सकती है कि फॉर एग्जांपल आईसी ने बोला कि भाई पेनल्टी लगा के हम छोड़ सकते हैं, मैनेजमेंट को लगा कि नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा केस दोबारा नहीं होना चाहिए, तो लोगों के लिए एग्जांपल सेट करो, सस्पेंड कर दो पर्सन या निकाल ही दो। तो वो मैनेजमेंट आईसी के रिकमेंडेशंस भी देखेगा लेकिन फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट के पास लाई कर देगा। उसके बाद क्या होता है कि दोनों पार्टीज के पास ये ऑप्शन भी है, अगर उनको फाइनल डिसीजन पसंद नहीं आता तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपील भी कर सकते हैं। बिल्कुल, फ्रॉम द डेट इंक्वायरी, जब से कमिटी ने इंक्वायरी सबमिट की उससे लेकर उनके पास 90 रिपोर्ट जो सबमिट करी, दोनों पार्टीज जो भी खुश नहीं है इस फैसले से वो कोर्ट जा सकती है विद इन 90 डेज। सो पूरा टाइमलाइन सेटअप है इनका। ये इसीलिए पॉश कमेटीज बनाई गई क्योंकि हमारी कंट्री में, इंडिया में जहाँ करोड़ों केसेस पेंडिंग है, लाखों भी नहीं, मुझे लगता है करोड़ों केसेस पेंडिंग होंगे, तो एक चीज है जो हम कहीं जल्दी सॉल्व कर पाए, इसीलिए ये पॉश एक्ट लाया गया और आईसी लाई गई कि एटलीस्ट फिक्स टाइम फ्रेम 3 to 6 मंथ्स के अंदर इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। काफी स्ट्रेटेजिक मूव है ये कि हम किसी नतीजे पे पहुंच सके। सो आशिमा, अंडर व्हाट सिचुएशन आईसी ये डिसाइड करता है कि ये जो केस है ये रिजॉल्व है या इसके बाद कोई फॉलोअप्स भी होते हैं? तो क्या हो सकता है नमिता, जब हम लोग भी आईसी रिकमेंडेशंस के लिए बोलते हैं ना, तो हम हमेशा कहते हैं कि जो आईसी जो कमेटी मेंबर्स है ना वो ऑड नंबर में होने चाहिए कि 3 हो, 5 हो, 7 हो। हम ये फिक्स नहीं है, ये लॉ नहीं कहता। आइडियली जब हम सेशंस करते हैं तो हम लोग ये जरूर कहते हैं कि यू नो कि ऑड नंबर रखे सो दैट कि मेजॉरिटी बन पाए। अगर इवन नंबर हो गए तो दो पार्टीज डिवाइड भी हो सकती है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद पीपल हियर। हम दोनों पक्ष की बातें सुन रहे हैं, उसके बाद कुछ हमें विटनेस मिला तो हम विटनेस से बात करेंगे, विटनेस नहीं मिला, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, लाइक कैमरा क्लिपिंग है या कोई वीडियो, कोई मैसेजेस हैं या कोई वीडियो है या कोई ऑब्जर्वेशन है कहीं से, तो और वो सारी चीजें हमें हेल्प करती है फाइनल डिसीजन में पहुंचने में। बट ऐसा हो सकता है कि आईसी भी फाइनल डिसीजन पे ना पहुंच पाए। अगर आईसी किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचती तो वो किसी भी पार्टी को गलत तरीके से या किसी भी पार्टी को गलत नहीं ठहरा सकती। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आईसी के इंक्वायरी के बाद नॉर्मली 3 नतीजे आ सकते हैं। एक कि जो रिस्पोंडेंट है वो गिल्टी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे भैया जो आपके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है वो बिल्कुल सही, हमें सही लग रही है और आप इसमें दोषी पाए गए हैं, तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आपको सस्पेंड किया जाना चाहिए या आपको पेनल्टी लगनी चाहिए, जो भी है हम एक चीज बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम किसी नतीजे में पहुंचे ही नहीं, पूरी जितने में इंफॉर्मेशन मिली वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा लॉ कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। राइट, जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती है हम किसी को गिल्टी करार नहीं दे सकते। यही रीजन है कि
पॉश एक्ट का जब प्रोसीडिंग्स चलती है तो सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, बिकॉज हम किसी की रेपुटेशन, किसी की रिस्पेक्ट के साथ डील कर रहे हैं। किसी के खिलाफ, मेरे खिलाफ कंप्लेंट आने का मतलब ये नहीं है कि मैं दोषी हूँ जब तक मेरे वो प्रूव नहीं हो जाता। तो जस्ट बिकॉज अगर कंप्लेंट आई अब बोलो ये दोषी होगा, वो सही नहीं है। इसलिए क्योंकि ये भी हो सकता है कि कंप्लेंट गलत हो। दैट इज अ थर्ड फेज। एक, रिस्पोंडेंट दोषी है, दूसरा हम किसी नतीजे में नहीं पहुंचे, तीसरा कंप्लेंट ही गलत थी, फॉल्स थी, जो कंप्लेनेंट है वो उस चीज को प्रूव ही नहीं कर पाए, तो उनके अगेंस्ट भी पेनल्टी लग सकती है। बट इन ऑल दिस सिचुएशन हमें सारा मैटर कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी की रेपुटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ भी लीक हो गया, उस इंसान की रेपुटेशन थ्रू आउट लाइफ के लिए खराब हो सकती है एंड उनको रिपरकशंस पे करने पड़ सकते हैं। तो जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, वैसे भी, और कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन हमें करके रखनी ही चाहिए इसमें। दैट इज द थिंग। तो अगर वो प्रूव हो जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर नहीं प्रूव होता तो हम से कि वी आर नॉट एबल टू रीच अ कंक्लूजन, या हमें लगता है कि कंप्लेनेंट गिल्टी है तो उनके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए। वही जो हमारा फाइनल आउटकम है वो हम मैनेजमेंट को भेजेंगे और मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगी। इसीलिए दोनों पार्टीज में से अगर किसी भी पार्टी को सही डिसीजन नहीं लगता तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर भी, बाहर जाकर भी अपना केस दोबारा से फाइल कर सकते हैं। आशिमा, आशिमा, अभी एक सिचुएशन आपको बताती हूँ। अभी जैसे कि पेंडेमिक हुआ था, एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम, तो टेक्निकली स्पीकिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट केस एट वर्क प्लेस शुड रिड्यूस। आपको क्या लगता है, मतलब क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है? या सबको लग रहा था कम होगा, लेकिन हम ना एक ऐसी कंट्री में रहते हैं ना, जहाँ ना लोग बहुत क्रिएटिव है, पॉजिटिवली भी क्रिएटिव है, नेगेटिवली भी क्रिएटिव है। तो हम सबको लगा था कि पॉश, यू नो, कि अब चलो घर से सब काम कर रहे हैं तो पॉश केसेस नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है। लोग जिन्होंने जो करना चाहते हैं हैरेस, उन्होंने वर्चुअली भी लोगों को हैरेस करना शुरू कर। सो वर्चुअल सेक्सुअल हैरेसमेंट बन गई 2 सालों में। ओके। तो वर्चुअल सेक्सुअल हैरेसमेंट में कैसी चीजें हैं कि आप बोल रहे हो लगातार अपने फीमेल एम्प्लॉइज को या किसी को भी अपना कैमरा ओपन रखकर ही हमसे बात करें। किसी, अरे तुम दिख नहीं रहे हो, एक स्पेसिफिक एंगल में बैठो, आगे बैठो, राइट में बैठो, ऐसे बैठो। यार तुमने वो जो उस दिन वाली शर्ट पहनी थी ना, जिसके जो आगे का डीप गला था, वो बड़ी अच्छी लग रही थी तुम्हारे ऊपर, तो वो शर्ट पहना करो जब हम मीटिंग करते हैं। ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना, डबल मीनिंग जोक्स भेजना, स्क्रीनशॉट्स लेना लोगों के बिना उनको बताए, और नाइट सूट पार्टीज करना कि चलो हम ऑफिशियली हमें गेट टुगेदर्स करनी है तो हम ना रात को नाइट सूट पार्टी करते हैं। तो या ऑड टाइमिंग से मीटिंग रखना, या लोगों से पूछे बिना ऑड टाइमिंग पे मीटिंग रखना, ये सारी चीजें भी वर्चुअल सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती है। तो दोस थिंग्स हैव बीन इंक्रीज्ड एज वेल। तो हमें लगा था नहीं होंगे केसेस, बट ऐसा नहीं है। जिन्होंने हैरेसमेंट करनी है उन्होंने अलग अलग तरीकों से करी ही है। सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिखना, पर्सनल बातें लिखना किसी और के, मतलब अगर मेरे लिए कोई आ रहा है तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ लिखना, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। मतलब आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, क्रिएटिव। लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, वो स्मार्ट हो गए। एग्जैक्टली। तो जिन्होंने सोचा, तभी सेंसिटाइजेशन हमें घर से शुरू करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। So Ashima, where can women who work in an unorganized sector will file a complaint under POSH since they don't have any internal committee to go to? हाँ, तो अगर 10 से कम एम्प्लॉइज हैं या एम्प्लॉयर के खिलाफ ही आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कि मैंने कहा मेरी हाउस हेल्प को कंप्लेंट फाइल करनी है, तो उनके लिए होती है एक लोकल कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो जैसे अगर मैं गुड़गांव में, तो गुड़गांव में भी होगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो लोकल RWA से या लोकल NGO से लोगों को उठा के वो कमेटी बनाते हैं। आप वहां जाके वो फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्हें बनाई होती है कमेटी, फिर वहां पे वो केस हैंडल किया जाएगा। टाइमलाइंस रिमेन द सेम। अमेजिंग आशिमा। So POCSO is about protection of children from sexual offences. So बच्चों को कब से सिखाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। और हमें लगता है कि बच्चे हमारे छोटे, इतने छोटे बच्चों के साथ कुछ नहीं हो सकता। आपको नहीं पता कि किसी भी एज ग्रुप के बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। हमने न्यूज में इतना बुरी चीजें भी पढ़ी हैं। तो डिटेल में तो चलो हम आराम से बात करेंगे, बट बेसिक चीजें अपने बच्चों को शुरू से सिखाएं। एक मैं हमेशा हम लोग कहते हैं कि व्हेन यू आर टीचिंग योर किड्स, करेक्ट बॉडी पार्ट्स के नाम बताना बहुत जरूरी है। अगर मैं उसको बता सकती हूँ बच्चे को कि ये बेटा तेरा ये हाथ है, ये फिंगर्स है, तो प्राइवेट पार्ट्स के नाम भी उनको सही तरीके से पता होने चाहिए। खुदा ना खास्ता गलती से किसी बच्चे के साथ कल कुछ हो जाता है, जब उनके से बातचीत की जाएगी वो उस पार्ट को अपने लिंगों में बात करेगा, वो लीगली शायद हो सकता है एक्सेप्टेबल ना हो। दूसरी चीज ये है, अगर हम हर चीज नॉर्मल रखेंगे शुरू से, तो बच्चे के लिए भी वो नॉर्मल है।
Right. So that is like, I should tell her कि भाई, if I have a daughter, कि these are your body parts, this is vulva, this is vagina, you should know. I have a 5-year-old daughter and she knows what is the correct name of the body part also. दूसरी चीज है, हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं teach their children from day one, और ये रोज आपको बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए कि वो भूले ना. There is a rule called no go tell. Okay. So if somebody tries to touch you somewhere, जो भी body parts आपके normally लोग कहते हैं कि swimsuit, जो swimsuit में body cover होती है, पहले ये बोला जाता था बच्चों को, but मैं कहती हूँ कि जो भी touch आपको अच्छा नहीं लगता strangers का, क्योंकि it's not just the swimsuit के body parts है, जो private body parts है, उन पे कोई touch ना करे. आज की डेट में यार लोग किस तरीके से आपके हाथ सिर के ऊपर टच कर रहे हैं या हाथ पे ऐसे फेर रहे हैं, वो क्या सोच के कर रहे हैं. किसी की सोच कितनी गिर सकती है, आप खुद सोच सकते हो. Being a women also specifically when it comes, तो इसलिए we are scared कि हम बच्चे को strangers के पास भी ना भेजें, बट बच्चे स्कूल तो जाएंगे, तो एटलीस्ट उनको बेसिक चीजें समझाएं, जैसे कि स्पेसिफिकली कि अगर आपको कोई टच करा है तो आपको वहां से भागना है. आपको उनको पहले बोलना है नो, आप मुझे टच नहीं कर सकते. No, so that is no. Go, run from that place, and please tell your parents. हर पेरेंट को अपने बच्चे के आसपास एक सेफ सर्कल बनाना चाहिए कि ये 3 या 4 लोग हैं, आप इनसे आके कुछ भी बात कर सकते हैं. एक हमारी कंट्री में क्या होता है कि आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनीबडी, बट चाचा मामा ताया ना, वो भी जाओ, उनको भी हग करो, उनको भी किस करो. अगर आपका छोटा बच्चा भी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वी शुड नेवर एवर पुश आवर चाइल्ड टू हग एनीवन. 2 साल के बच्चे को भी हमें पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के रिफ्लेक्सेस बच्चे का साथ नहीं देंगे. आज बच्चे को समझ नहीं आएगा अगर हम उसको टाइम पे नहीं बताएंगे कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है. एब्सोल्युटली. क्यों? इसलिए बच्चों के रिफ्लेक्सेस. अगर आपका बच्चा किसी को हक करना नहीं चाहता, छोटा बच्चा भी, आप उसको फोर्स ना करें. ये मत सोचे कि आपकी बेइज्जती हो रही है, आपके लिए आपका बच्चा ज्यादा जरूरी है. आप अच्छे से बात कर रहे हो ना किसी से. मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई इंसान कभी गलत है कि नहीं, लेकिन यहाँ मैं अपने बच्चों के रिफ्लेक्सेस को मुझे कंफ्यूज नहीं करना. एक. दूसरा, उसको नो गो टेल समझाना है, आके पेरेंट को बताओ. तीसरा, उसको सिखाइए देयर इज नो सीक्रेट गेम विद स्ट्रेंजर्स. स्कूल का बस का कंडक्टर आपको बोले कि भाई मेरी सीक्रेट गेम है, मैं तेरे को रोज टॉफी दूंगा, आप किसी को बताना नहीं. या आपके बच्चे ने किसी और को देखा, किसी और बच्चे के साथ ऐसे वो कोई कर रहा है, तो आके अब शायद अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं. किसी स्ट्रेंजर के साथ कोई सीक्रेट गेम नहीं है. स्ट्रेंजर या किसी के साथ भी नहीं है. पेरेंट कोई भी कहे बच्चे को कि ये हमारा सीक्रेट है, बच्चे को आके वो सीक्रेट अपने पेरेंट्स को बताना है. प्लीज ट्रेन योर किड्स दैट वे. सो एक मूवी आई है रिबन, प्लीज वॉच इट. मतलब रोंगटे खड़े कर देगी स्पेसिफिकली पेरेंट्स के. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डरिए, बट अवेयर होना बहुत जरूरी है आज की डेट. आज की डेट में वही हो रहा है आशिमा कि हम जो चीजें 50 साल पहले भी करते आ रहे हैं, हम उन चीजों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, या तो उन्हें री-इवैल्यूएट करने की कोशिश नहीं कर रहे. जो चीजें चल रही है बस उसे चला रहे हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी सिंगल पर्सन और इवन एवरी सिंगल रूल और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज टू चेंज विद द वे ऑफ द सर्वाइवल. अगर आपका सर्वाइवल डिमांड ही वो करता है कि उस रूल को बदला जाए, तो वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. एंड ये भी जो एक चीज होती है ना कि कई बार पेरेंट्स बच्चों को कंफर्टेबल नहीं होते बताने के लिए. लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं शायद कंफर्टेबल ना हूँ, पर हमें ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि ये जरूरी है हमसे ज्यादा बच्चे के लिए. अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे तो वो आगे जाके अपने जब उनकी जब जनरेशन होंगे तो उनको कैसे समझाएंगे. ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, बेबी स्टेप्स, बट इनका जो इम्पैक्ट होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है. ये बहुत जरूरी है. पहले क्या था नमिता, लोगों के पास, बच्चों के पास ना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या हम उनको अच्छे से बताते नहीं थे. अब क्या है, जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है. इंटरनेट बहुत सारी चीजें गलत बताता है, तो एज पेरेंट्स इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चे में वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करें कि कल को मेरा बच्चा आके मुझसे कोई भी बात कर सके. इट इज वेरी नॉर्मल, बेसिक चीज है. मैं बाकी डिटेल्स में नहीं भी जाऊँ, मतलब यू नो इवन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. तो आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ फैमिली कि इफ आई वाज ऑन माय मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आई कुड आस्क माय ब्रदर, माय फादर आल्सो टू गो टू द केमिस्ट एंड गेट मी सैनिटरी नैपकिन्स. सो बेसिक चीजें, यू नो, इट शुड बी एन ओपन एनवायरनमेंट. इट इज नॉर्मल, इट इज नेचुरल. सो उस चीज का तो हवा नहीं बताना चाहिए. नॉर्मल है, हर गर्ल के साथ ऐसा होगा हर महीने. तो इट इज नॉर्मल. ब्रश करना जरूरी है, वॉशरूम जाना जरूरी है. सिमिलरली ये भी पार्ट ऑफ लाइफ. ऐसे नहीं 5 दिन आप घर में बैठ जाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो. इट इज नेचुरल and every member in the family should take it down. आउटस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन आशिमा. सो आशिमा, अभी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस हैं वो काफी राइज पर नजर आ रहे हैं. क्या आप बता सकते हैं कि आपके फ्यूचर गोल्स इसी लेकर क्या है? फ्यूचर गोल्स ये है टू क्रिएट मोर अवेयरनेस
कि रिड्रेसल तक हम ना पहुंचे, हम प्रिवेंशन पे काम करें, लोगों को बताएं, प्रोफेशनली पर्सनली सबको बताएं। मुझे तो अगर मैं अपने बच्चे को भी सिखाती हूँ, मैं दूसरों के बच्चे मिलते हैं मैं उनको भी बोलती हूँ, जनरली मेरी डॉटर के फ्रेंड्स भी, बेटा ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, उनकी मम्मी से पूछ के इज इट ओके, या आप अपने बच्चे को ये चीजें जरूर बताएं, क्यों लड़के को भी बताए लड़की को भी बताए। तो बेसिक चीजें ये है कि हमें अपने लेवल पे वो स्टेप बाय स्टेप, इट इज अ स्मॉल स्टेप, हो सकता है ये मुझे लगा इतनी बड़ी इंडिया में मैं सिर्फ अकेले काम कर रही हूँ या मेरे जैसे कुछ और मदर्स काम कर रही होंगी या पीपल हु वांट टू क्रिएट अवेयरनेस, लेकिन अगर मैं हफ्ते में भी किसी एक पेरेंट को ये चीज बता पाती हूँ एंड हर महीने में 4 लोगों को बता पा रही हूँ, तो आप सोचो हर साल में मैं कि 48 लोगों को बता पा रही हूँ। तो इट इज स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, बट इट इज लाइक चाहे स्मॉल है बट वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि वो स्टेप हमें लेना चाहिए, और पॉक्सो एक्ट के बारे में जरूर रिसर्च करें, जरूर पढ़ें। हर पेरेंट को उसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है ऐसा कुछ है। इट इज अ वेरी चाइल्ड एंड पेरेंट फ्रेंडली लॉ, so please read about it. And if you get queries, we can definitely discuss about it in another session. Absolutely, हो सका तो हम एक अलग सेक्शन सिर्फ इसके ऊपर करेंगे जहां पर हम इस एक्ट के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। आशिमा, definitely आशिमा, on that note I must say कि आप जो काम कर रहे हैं, it is a phenomenal work that you are doing. So आशिमा, आपकी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आप कोई स्पेशल मैसेज या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं व्यूअर्स को, ऑडियंस को? My advice just will be that कि हमेशा try, हो सकता है आपके साथ ये ना हो रहा हो लेकिन किसी और के साथ हो रहा हो, please create awareness, please tell others what are their rights, please speak up, check out what is the best way to speak up, but definitely report it, bring it out in public. मैं नहीं कहती आप अपनी सेफ्टी को हैम्पर करके आए, हो सकता है कि it can be a dangerous situation for you, but make sure it comes out. A classic example of this was the Me Too movement. इतने सालों से लोगों के साथ हो रहा था हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी, फाइनली पीपल हैव कम आउट ऑफ दैट आल्सो एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। बोलना बहुत जरूरी है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, मतलब हम सह रहे हैं और हम उसको वी आर ओके कि हमारे साथ हो रहा है तो होने दो, चलो कोई बात नहीं। ओपन में आना बहुत जरूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जैसे बिकॉज़ लाइक आई सेड कि मोस्ट ऑफ अस हैव फेस्ड दिस थिंग और अदर थिंग। मेट्रो में आते हुए somebody is trying to touch you और आप भी कह रहे खुद थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, कुछ नहीं करें। Start nudging people, use your hands to your benefit, shout। जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं वो बंदा एम्बैरस नहीं होगा। मैंने 20 साल पहले डीटीसी बस से लोगों को उतरवाया हुआ है। मैं सच बता रही हूँ, ये एक लेवल हद हो जाती है जब तक जहाँ तो आपकी वो लेवल आप क्रॉस कर जाते हो। मेट्रो में लोगों पे चिल्लाया हुआ है। सो डू दोस थिंग्स कि लोगों को उतरवाए। मतलब एक बार तो बहुत ही था कि हम लोग एग्जाम देने जा रहे थे, हम लोग 5 लड़कियों का ग्रुप, हम बस से उतरे और अपने इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं, बाकी लड़कियां चिल्लाते हुए आ रही है। इट वाज अ गर्ल्स इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। देयर वाज दिस जेंटलमैन, अपना फेस कवर किया हुआ है एंड अपना प्राइवेट पार्ट हाथ में लेके घूम रहा है किसी लड़की को टच करने के लिए सुबह 9 बजे। कैन यू बीट इट? Oh my God. एंड देन फाइनली कुछ लड़कियां डर के भाग रही है, कुछ लड़कियां ऐसी थी कि डर के क्यों भाग रहे हो, उन्होंने अपनी चप्पलें उठाई, स्टोन्स उठाए, उस बंदे को मारना शुरू किया, फिर वो वहां से भागा। तो स्टेप हमें लेना पड़ेगा, हम किसी और का वेट नहीं कर सकते। भी पुलिस वाला आएगा तो हमारी मदद करेगा। प्लीज हेल्प योरसेल्फ। हमारी जब तक हम अपनी सेल्फ मदद नहीं करेंगे कोई और नहीं करेगा। सो प्लीज माय मैसेज इज प्लीज हेल्प योरसेल्फ। एग्जैक्टली, ये आशिमा आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है कि rather than depending on somebody else to help you, first start helping yourself। हम में इतनी ताकत होती है, इतनी समझ होती है कि कुछ नहीं तो हम बखेड़ा तो खड़ा कर सकते हैं यार। हम अपने अंदर से एक बच्चा बाहर निकाल सकते हैं, तो सोचो जो कोई और नहीं कर सकता। That's what. So Ashima, on that note, thanks a lot for coming over here. आपने बहुत enriching and enlightening चीजें हमारे साथ share की। I'm sure this is going to be like helpful to lot of viewers and audience. And ये एक public awareness topic है। I just hope and I'm keeping my fingers crossed। यहाँ पर मैं अपने viewers and audience को यही कहना चाहती हूँ, please share this podcast with as many people as possible. I think Ashima, this is the first time, जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर ऑडियंस को इतना क्लियर कट कह रही हूँ कि इस पॉडकास्ट को आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत डीप रूट पर हो रही है, बहुत गलत हो रही है। और अगर हमें दुनिया में रेडिकल चेंज लाना है तो चेंज हैज टू स्टार्ट विद अस फर्स्ट। सो प्लीज गो अहेड, शेयर दिस पॉडकास्ट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल।
ये अवेयरनेस स्प्रेड करने में हेल्प करेगा और ये घर घर को, हर एक बच्चे को, हर एक लेडी को, इवन मेल्स को भी हेल्प कर सकता है. So yeah, Ashima, सबको हेल्प करेगा. Yeah, so this is it from my side, Ashima. I hope कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया. Thank you so much for giving me this opportunity जहाँ हम इस बारे में बात कर पाए, because मेरे लिए बहुत important है ये awareness create करना और लोगों को ये समझाना the change starts with us. Let's not wait others to do it. You can start it. And this is one example that where you can start off. यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं और प्लीज कीजिए, यही सोच के कि जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, या बहुत बार ऐसा हुआ हो कि हो चुका हो बट उन्होंने आप ही को नहीं बताया. बिल्कुल. क्वेश्चन मार्क. अगर आप जाके उनसे पूछिए ऐसा हुआ है और उन्होंने आपको नहीं बताया, आप समझ जाइए कहाँ से आपको शुरुआत करनी है. So Ashima, let us stay connected. It's a pleasure to know you. Definitely. It's a pleasure to listen to you today. हम definitely हो सके तो आगे जाके और पॉडकास्ट करेंगे on deeper topics. Thank you so much for this opportunity, Namita. It was great connecting with you, and yes, we'll be in touch. So take care, Ashima. Have fun. You too. Speak to you soon. Again, keep on doing great work. Thank you so much, Ashima. Thanks a lot, and all the best for your future endeavors. Thank you to you too as well. Thanks a ton.